Hello students and welcome back in your YouTube channel The City School Digital. In this video we are going to discuss chapter number 9 of class 7. Got it students? I have already explained you this whole chapter and this time we are going to revise each and every point so that it get imprinted in your mind. Got it? Okay. So I just want you to concentrate and answer whatever question I will ask here. Got it? So your first question is, what do you mean by respiration? Yes, Ritesh is answering. Yes, beta. Respiration is the process in which our body utilizes oxygen from blood and utilize energy for different metabolic activities. So, in respiration, it is cellular process. How it is cellular process? Because cells of our body utilize oxygen and then what it do? Then utilize energy for different metabolic activities. Next is breathing. I want Vaishnavi Singh to answer this question. What is breathing, Vaishnavi? Yes, breathing is the process in which inhalation as well as exhalation takes place. Inhale, exhale, just like Baba Ramdev. बाबा रामदेव कैसे करते हैं? Lots and lots of yogas. और उस योगा का क्या फायदा होता है? उस योगा के एडवांटेजेस होते हैं. Means it just clear the whole path and you just inhale good air. Your respiratory activities improve and you never suffer from asthma and lung related diseases. Got it? These 2 points are there. Now next question is types of respiration. What are the types of respiration? Before proceeding to this topic, I am going to ask you one single question. What are the advantages of respiration? Any answer from your side? I think Abhishek Pal wanna answer. Yes. This function of this respiration is to provide energy to each and every each and every cell of our body and to carry out that waste from each cell, mix it with mix it with blood and again it comes to lungs and we exhale and remove all the waste. Okay, so types of respiration. First is aerobic. Second is anaerobic. Aerobic means it is a type of respiration in which oxygen is used. And in this aerobic respiration, the release of energy is more. Got it? Okay. What do you mean by anaerobic respiration? In this, oxygen is not used and energy released is less. This is a general overview over types of respiration. Got it, students? So, another question arises in my mind that why we are not able to survive if we put in condition of anaerobic respiration. Why? Because here less energy is released whereas we require more energy for our activities like for running, for walking, for playing games, for playing PUBG वाला game, है ना? बहुत खेलो बेटा, पढ़ना नहीं. Okay, let us describe it into detail. मुझे पता है आपको सारे आंसर्स आते हैं. लेट्स सी कितनी मार्किंग होती है आने वाले यूनिट टेस्ट में. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होगा ओवर ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला जल्दी बताइए, C6H12O6। रिपीटेड अगेन, C6H12O6। इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया इसको रिएक्ट या फिर ब्रेक डाउन किया, एंड प्रोडक्ट इज CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। गॉट इट? इस एनर्जी की मैंने आपको ATP बताई थी। ATP इज व्हाट? एनर्जी करेंसी। दुकान पे जाओ तो क्या आप जाओगे और वो आपको सामान दे देगा? नहीं, बोलेगा भैया पैसे लाओ पहले। तो पैसे, हमारी बॉडी में पैसे कौन से फॉर्म में होते हैं? ATP। यहाँ पे 36 ATP रिलीज होगी, एंड 1 ATP इज इक्वल टू 30.6 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फाइन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है? बेटा ये होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। फॉर व्हाट? फॉर डिफरेंट यू कैन से, जैसे हमारी आईज से हम देख सकते हैं, नोज से हम फ्रेग्रेंस या ऑर्डर को स्मेल कर सकते हैं। तो डिफरेंट काम दिया हुआ है सबको। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, उसका अलग काम होता है, बोर्ड इंचार्ज का अलग काम होता है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में भी होती हैं। तो इतनी सारी अलग अलग चीजों को काम करना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, प्लस हम लोग बहुत ज्यादा खेलते कूदते भी है। पर क्या प्लांट्स हमारे जैसे खेलते हैं? या वो ईस्ट मीन्स इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is used in making of bread। ठीक है, ओके। सो इसका तो हमारा हो गया कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब बात करते हैं एनएरोबिक की। तो एनएरोबिक में क्या होता है? वहां पे फॉर्म हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, C6H12O6 ये यहाँ पे नहीं होगा। ओके, देन इट कम्स टू CO2 प्लस। अल्कोहल का फॉर्मूला वैसे तो मैं बता देती हूँ, पर आप नॉर्मल अल्कोहल भी लिखोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3CH2OH ये फॉर्मूला होता है आपके अल्कोहल का। ठीक है, ओके, प्लस एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या, कितने ATP होगी? 2 ATP। तो देखिए यहां पर आपके 36 ATP है, यहां पे आपका 2 ATP। कितना डिफरेंस आ गया? ठीक है, अच्छा। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, कुछ बैक्टीरियाज में, अमीबा में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट? थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग का रेस्पिरेशन का सिस्टम क्या होता है? चलिए पहले लिख लेते हैं कि हमारे पार्ट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं नोज में होता है, मैंने आपको क्लियर किया था, सीलिया एंड म्यूकस। अच्छा, आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा है। ठीक है, उससे आप इजीली जैसे जैसे मैं करते जाऊंगी वैसे आप विजुअलाइज करते जाएगा कि हाँ उस डायग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, नोज के बाद एयर कहाँ जाएगी? फारिंग्स। फारिंग्स के बाद जाएगी लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी? यस, अब उसने एंट्री मार ली इन योर लंग्स, बट कैसे? ब्रोंकी, देन ब्रोंक्यूल्स, देन alveoli। ठीक है, ओके। अब हम इनहेल करना स्टार्ट करते हैं। We inhale through our nasal cavity. Nasal cavity में small fine cilia-like structure, which is your black hairs, which prevent entry of foreign material. Got it? जितना भी dust, जितना भी pollution होता है उससे वो बचाता है। ठीक है, okay. Next is pharynx. Pharynx means that part where windpipe and food pipe
बोथ एग्जिस्ट। बट ये फेरिंग्स फिर डिफरेंशिएट कैसे करता है? जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हमारी विंड पाइप फॉर दैट सेकेंड बंद हो जाती है। जब हम ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती बिकॉज वहां पर एक छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, कभी आपने अपना बड़ा सा मुंह खोला होगा तो देखा होगा यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ऊपर से ऐसे लटका हुआ, उसको बोलते हैं बेटा एपिग्लॉटिस। थोड़ा सा बड़ा टर्म है बट समझ लीजिए एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या करता है? कभी कभी हम क्या करते हैं, बड़े चंट होते हैं, मम्मा बोलती है कि बेटा खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, और हम बस चटर 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 करते जा रहे हैं, तो उससे खाना आपके विंड पाइप में चला जाता है और आपको फिर खांसी शुरू हो जाती है, एंड इन जनरल लैंग्वेज वी कैन से सरक जाता है। ठीक है, तो वो सरकना मीन्स व्हाट? शिफ्ट कर जाता है इनटू विंड पाइप। ओके, अब आ गया लैरिंग्स। अब कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलो। हाँ, खुशी का ही नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की कहानियां सुन लो। तो खुशी की कहानियां कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स में के थ्रू आवाज वाइब्रेट करके हमारी बाहर निकलती है। फिर पहुंचते हैं ब्रोंकी। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम में आपको ब्रोंकी दिख रहा है, दैट लंग्स एंड देन ब्रोंकी। उस ब्रोंकी में क्या हो रहा है? एयर पैसेज पास हो रहा है, एंड देन ब्रोंकी टू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स टू एल्वेओलाई, एल्वेओलाई में फाइनली जाके, लुक एट द डायग्राम, एल्वेओलाई में फाइनली जाकर के क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है एयर, एंड सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई इज द जंक्शन वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड वेयर ऑक्सीजन गेट मोर एब्जॉर्ब्ड। गॉट इट? ओके, अब ये थे हमारे क्या? ये था हमारा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैकेनिज्म में दो तीन चीजें आती हैं। ठीक है, एक और चीज, अब ये दूसरी फोटो देखिए, इसमें मैंने आपको शो किया है, मींस एक इनहेल इन विच योर चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, एंड एक एक्सहेल जिसमें योर चेस्ट कैविटी अगेन रिलैक्स। एंड नीचे अब बेटा वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी वो थिन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट शीट ट्यूब, that is known as diaphragm. When you inhale, your diaphragm get what? Uplifted, and when you exhale, your diaphragm get flattened. Got it? So इस डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ इजीली क्लियर है। ये था आपका मैकेनिज्म। अब इसके बाद आपकी आएगी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, और दूसरी साइड हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब होगा क्या बेटा? प्लांट्स में रेस्पिरेशन सबसे पहले लीव से होता है, उसके बाद होता है किससे? यस, स्टेम एंड देन रूट। इन जनरल जो आपके बुक में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, बट व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इन योर हायर क्लासेस उसमें आपको बहुत अच्छा डिटेल्ड वर्जन गिवन है। तो अच्छा, लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? लीव्स किस कलर की होती है पहले ये बताइए? ग्रीन कलर। ओके, ये लीव है आपकी ग्रीन कलर की। अब लीव में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, और एक और चीज होती है, yes, stomata. This is stomata. Beta, I have already taught you in my previous video about opening and closing of stomata. This here, the opening and closing of stomata leads to exchange of gases. Got it? So, by this medium, by opening and closing of stomata, respiration takes place in leaves. Then स्टेम। अच्छा, बड़े बड़े ट्रीज देखे आपने? मेरे नाना के घर पे एक मैंगो ट्री था, वो तो बुढ़ा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट लीव्स मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, exchange of gases takes place. What about stem? Here I am drawing one tree which is very old. Means जब आप 1 year के थे तब आपने ये लगाया था, और जब आप 10 years के हो गए तब तक ये एज इट इज है। अब इसके ऊपर थोड़ी बुढ़ापे की निशानी आ गई है, वी कैन से ब्राउन बार्क।
that brown bark have few cracks, and those cracks are actually stem in through which we we observe that these plants exchange gases. Got it? Next is root. Root have root hairs. Here's the root. Root hairs are there. So through these root hairs, respiration takes place. Means exchange of gases as well as utilization of oxygen. Then respiration in animal. At first we are going to talk about unicellular animal. Unicellular animal का example सबसे best आता है amoeba. In amoeba, respiration takes place through diffusion. Got it? Next is, if we talk about cockroach. लोग बहुत डरते हैं उससे, except me, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. So this cockroach have lungs as well as trachea, and in that trachea few spores are there known as spiracles. So that spiracles, respiration takes place in cockroach. What about fish? Fish have gills, and through these gills respiration takes place. Got it? What about earthworm? In earthworm, respiration takes place through skin, through moist skin. Got it? That's all for today. If you like this video, do like, share and subscribe the City School Digital, and wait for me for the next video. Thank you.